Hello students, welcome to this video of Data Science Unit 5. In this video, we are going to cover loops, conditional expressions and functions. So before proceeding with this video, let's take a brief recap about what we discussed in previous video. In previous video, we have discussed about input output, arrays, matrices. In input output, we have discussed about the input methods, basic output methods, how we can read data from the file, how we can store data to a file or writing data in a file. Then we discuss about the arrays of syntax and matrices, manipulations based on array and matrices both, and data access of arrays and matrices. Now in this video, we are going to discuss about the loops, their types, conditional executions or conditional statements, followed by the functions. So let's start with conditional executions or conditional expressions, or also known as conditional statement. So basically, conditional statement is a programming construct where a decision is made to execute some code based on boolean value, means true or false type of condition. It is just a scenario where we have to decide which code should be executed and sometimes when it is executed. So let's discuss with this a simple diagram. Suppose I am having this situation where I have to check whether x is greater than 0 or not. If it is true, then we follow the yes path where we are going to print x is positive. But if we find this condition is false, then we go for this direction where we do not take any action, or we do not code any coding. We do not execute any coding. But it also be possible that we can also write some code here to execute it in case of the condition is false. So it is depending upon the true and false condition. Let's discuss about the types of conditional statements. So R provides the four type of basic conditional statements, although it is basically three types, but somehow we can told them four types. So basically सबसे पहला जो है that is if statement consists a boolean expression. If it is true, then it is executed, else no action will be taken. Another one is if else. This is two condition, at least one condition must be true. If condition is true, we can execute a if part. If not, then else part must be executed. ए या तो ए ऑप्शन होगा या बी होगा. पहली वाली कंडीशन जो थी उसमें यदि कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं होगा. बट यहां पे एटलीस्ट एक एक्शन होगा. तीसरी कैटेगरीज में हम जाते हैं जिसको हम कहते हैं इफ एल्स. कुछ लोग इसको इफ एल्स या एल्स इफ एल्स इफ भी कहते हैं. सो बेसिकली द टर्मिनोलॉजी इज नेस्टेड इफ एल्स. जब हम इफ एल्स के साथ इफ एल्स का यूज करते हैं, या इफ एल्स इफ सिचुएशंस जहां पे आती है जब हम बात करते हैं कंडीशन के अंदर कंडीशन की, तब इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं. बट यहाँ पे भी जो सिनेरियो होगा वो ये होगा कि आइदर यू कैन यूज इफ कंडीशन, देन यू कैन गो विथ the if. Else we can go with the else, and else part we also put a new condition with if. So this is similarly going like a structure. ये एक structure की तरह बनता जाता है. एंड लास्टली स्विच जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को चेक कर लें. इफ में आप एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, इफ एल्स में आपको दो चॉइसेस मिलेंगी, नेस्टेड इफ एल्स में इनिशियली आपको दो चॉइसेस मिलेंगी, बट हर चॉइस के अंदर आप दो दो चॉइस के ऑप्शंस दे सकते हैं. स्विच केस एक साथ आपको मोर देन टू चॉइसेस का ऑप्शन प्रोवाइड करता है. इफ को देखते हैं.
सिंपली फॉर्म ऑफ डिसीजन कंट्रोलिंग स्टेटमेंट जो यूज किया जाता है वो इफ स्टेटमेंट है। एक सिंपल से प्रोग्राम्स के थ्रू हम देखते हैं कि सपोज आई हैव अ number and I store it a value 10 and I want to check whether this number is greater than 0 or not. यदि ये कंडीशन ट्रू होती है then the results will be this, number is positive. साथ में मैंने एक और कंडीशन रखी है कि if number is less than 0 print number is negative. अब ये दोनों मैंने अलग अलग इफ में रखी हैं। जो भी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो पॉजिटिव है इसलिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, बट यदि ये 10 नेगेटिव होता तो सिर्फ ये वाला कोड यूज होता। मतलब एटलीस्ट दो में से कोई एक ही चलेगा, दूसरा जो कंडीशन है वो यूजलेस हो जाएगी। लेट्स टेक ए आउटपुट। सो नंबर इज पॉजिटिव जस्ट बिकॉज 10 has positive value. Continue with next, if else. इफ एल्स कंडीशंस में बेसिकली दो ब्लॉक्स होते हैं, ट्रू ब्लॉक्स और फॉल्स ब्लॉक्स। तो इफ जो है वो आपका ट्रू ब्लॉक्स है और एल्स जो है वो आपका फॉल्स ब्लॉक है। तो यदि ट्रू कंडीशन मिलती है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और यदि फॉल्स कंडीशन मिलती है तो एल्स पार्ट आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। हो सकता है यदि मैंने कंडीशन इस तरीके से लगाई है कि फॉल्स होने पे इफ एग्जीक्यूट हो और ट्रू होने पे एल्स एग्जीक्यूट हो तो भी होगा, बट मोरल ये है कि आइदर इफ और एल्स में से एटलीस्ट एक वैल्यू, एक कोड एग्जीक्यूट जरूर होगा। प्रीवियस एग्जांपल्स को ही देखते हैं। इसी प्रीवियस प्रोग्राम को मैंने इसको आपको इसके साथ बनाया हुआ है। सो यहाँ पे सपोज मैंने एक नंबर लिया 10, अब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू कर दी है -10। प्रीवियस एग्जांपल में हमने इसको पॉजिटिव रखा था, इस बार हमने इसको नेगेटिव रखा है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन नंबर इज पॉजिटिव, एल्स मस्ट बी प्लेस्ड इमीडिएट आफ्टर इफ। यदि इफ के बाद हम इसको यहाँ पे प्लेस नहीं करते हैं तो कभी कभी ये मिसप्लेस एल्स की एक एरर आपको जनरेट करता है। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी आप इसको इफ जहां पे क्लोज कर रहे हैं उसी के साथ उसका एल्स का स्टार्ट कर दें। यहाँ पे मैंने दिया है कि यदि नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर नहीं है तो नंबर होना चाहिए नेगेटिव, इसलिए एस पार्ट में मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है नेगेटिव। अब जो कि देखने से ही समझ में आ रहा है कि -10 इज अ नेगेटिव वैल्यू एंड एल्स पार्ट must be executed just because the mentioned condition is not true. So let's see the output. Yes, output is number is negative. Let's go to the next, nested if else और if else if। यहाँ पे भी मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल जो है वो कोट किया हुआ है, और वो एग्जांपल ये है कि सपोज मैंने मार्क्स एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने 75 वैल्यू को स्टोर कराया है। नाउ आई एम गोइंग टू चेक द कंडीशंस। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, यदि मार्क्स जो है वो 85 या 85 से ज्यादा है देन प्रिंट ए ग्रेड। ए ग्रेड जो है वो मार्क्स के बेसिस पे उसको अलॉट होना चाहिए। एल्स एल्स क्या करूं, यदि 75 85 से बड़ा नहीं है तो क्या, तो मैं उसको फेल नहीं कर सकता क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास और कंडीशंस हैं जो मुझे चेक करनी है। देन आई विल गो विद द एल्स पार्ट एंड अगेन चेक वेदर the marks is greater than equal to 65. Yes, 75 is greater than 65. Then print B grade. Remember, in case of if else, if any one portion is executed, rest are ignored. यदि ये यहाँ पे execute हो गया तो बाकी के जो कोड्स हैं वो execute नहीं होंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे क्योंकि हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। वहीं यदि इसकी वैल्यू 95 होती तो सिर्फ इतना ये फर्स्ट इफ पोर्शन एग्जीक्यूट होता, बाकी के पार्ट जो है वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। बट कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि यदि सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 75 नहीं होता और कोई वैल्यू होती है लोअर देन 65 होती है, तब ये अगेन
एल्स पार्ट में जाता और एल्स के साथ फिर हमें अगेन एक इफ हमने लगाया है जिसमें हमने इसको कंपेयर किया है, मार्क्स शुड बी दी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। यदि ये इस रेंज के मार्क्स होंगे तो हमें ये ग्रेड सी प्रिंट करेगा, यदि ग्रेटर देन 35 होंगे तो डी ग्रेड प्रिंट करेगा। इसके अलावा भी कोई वैल्यू है, मे बी -75 होता या 25 होता या बिलो 35 कोई भी वैल्यू होता, तो ये सबसे जो लास्ट पोर्शन है एल्स का ये एग्जीक्यूट होगा और ये डिस्प्ले करेगा फेल। यदि हम सिंपल बेसिक टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हमने पहले दो कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन रॉन्ग हुई, हम एल्स पे गए, फिर एक कंडीशन लगाई रॉन्ग हुई, फिर एल्स पे गए, फिर एक कंडीशन लगाई, फिर रॉन्ग हुई, तो फिर एल्स पे गए, और ये हम तब तक लेके जाएंगे जब तक कि सारे इफ एल्स जो हम सेटल नहीं कर लेते। यहाँ पे यदि हम काउंट करेंगे तो जितने पेयर इफ के होंगे उतने ही जो है एल्स अवेलेबल होंगे हमारे साथ। लेट्स टेक ए आउटपुट। So output is B grade. Why this B grade? Just because 75 is lie between the range of 85 and 65. This is the upper range. क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ग्रेटर देन 85 होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ग्रेटर देन 85 नहीं है, इट मींस नेक्स्ट जो होगा उस कंडीशंस को हम चेक करेंगे। नाउ डिस्कस अबाउट द स्विच। Switch statement permits a variable to be tested in favor of equality against a list of केस वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास केस वैल्यूज होते हैं, उन केस वैल्यूज के बेसिस पे हम इसको चेक करते हैं कि विच केस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। और ये जो केस वैल्यू है ये स्विच होती है एक केस से अनदर केस। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया y, इसमें मैंने 12 को इनिशियलाइज कर दिया है, सिंपल इनिशियलाइजेशन थ्रू दी इक्वल्स टू। a को मैंने 10 से इनिशियलाइज किया है और b को मैंने 2 से इनिशियलाइज किया है, और मैंने जो स्विच की एक वैल्यू लगाई है वो ये लगाई है कि आपकी x में जो भी ऑपरेशंस होगा स्विच के थ्रू सिलेक्शंस का, वो स्विच में हमने किसको कंपेयर करा है, y को, कि y की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। मैंने उसमें 4 केस दिए हैं। पहले केस में जो मैंने रखा है 9, सपोज y की वैल्यू 9 होगी तो क्या होना चाहिए, 9 यदि है तो कैट फंक्शन का यूज किया है मैंने एडिशन इक्वल्स टू प्रिंट कराने के बाद, और a और b दोनों का एडिशन डिस्प्ले हो जाए। यदि 12 है तो कैट की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू a माइनस b। यदि ये वैल्यू 18 है तो इस पे हम बात करेंगे कैट डिवीजन की, कि हमें डिवीजन मिलना चाहिए a डिवाइड बाय b। और यदि बात आती है कि यदि कैट की y की वैल्यू जो है वो 21 है तो हम जाएंगे a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन पे, और फाइनली जो है वो हम x को प्रिंट कर देंगे। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट है सब्सट्रैक्शन इक्वल टू 8। अब सब्सट्रैक्शन क्यों आया, क्योंकि जो y की वैल्यू थी दैट मस्ट बी 12, और 12 कौन सा केस है, दिस सेकंड केस इज मैच विद द केस। सो सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू कॉल हुआ और साथ में a माइनस बी यानी 10 माइनस 2 8 की वैल्यूज हमें यहाँ पे रिसीव हुई। सो ये हमारे बेसिक जो थे वो आपके एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे, जिसमें हमने 4 चीजें देखी। अब मूव करते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा लूप। लूप्स आर बेसिकली यूज्ड for the execution of similar codes into multiple times। कोडिंग में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमें सेट ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड को n नंबर ऑफ टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करना है। ऐसे सिचुएशंस के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं लूप statements। So basically loop statements allow us to execute a statement or group of statement or set of codes to execute multiple times। इसको देखने के लिए सिंपल सा एक बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज ये कंडीशंस है, इसको कंडीशंस को हमें चेक करना है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन वी कैन एग्जीक्यूट द कोड, and after execution we can move again and again check the condition, and this cycle will happen continuously until the condition is false. If condition is false then we can discontinue this loop।
सो जो पूरा कोड है वो एक साइक्लिक फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली यदि हम आर की बात करें तो आर में 3 तरीके के लूप्स होते हैं। फॉर लूप जो कि सिमिलर होते हैं, तीनों लूप सिमिलर होते हैं, बट इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सबको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सो फॉर लूप, वी हैव अ फॉर लूप, देन रिपीट लूप एंड व्हाइल लूप। सो हमारे पास जो है वो 3 लूप हैं। तीनों के तीनों का काम यह है कि सेट ऑफ कोड को एंड टाइम या डिफाइंड टाइम एग्जीक्यूट करना, बट इनके जो यूज करने का तरीका है, जो सिंटैक्स है, दैट आर क्वाइट डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द loop. Let's start with the for loop. So for loop is a most popular control flow statements. सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो for loop यूज किया जाता है। ये सिंपली आइट्रेट वेक्टर को जो है वो आइट्रेट करता है कंटिन्यूसली एंड टाइम या डिफाइंड कंडीशंस के बेस पे हम इसको नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवाते हैं। सिंपल यदि सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले फॉर लूप, देन वैल्यू इन वेक्टर। किसी भी एक वेक्टर में कितनी वैल्यूज है उतने टाइम ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया है x जो कि वेक्टर है, इसमें c वेक्टर से मैंने कुछ रैंडम नंबर्स जो है इसमें स्टोर करवाए हैं, और एक काउंटर वेरिएबल लिया है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, और फॉर लूप में मैंने एक वैल्यू वेरिएबल का यूज किया है, और इसको बताया है कि ये वैल्यू वेरिएबल किसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगी, इस x के अकॉर्डिंग। यानी अब x में जितने एलिमेंट्स हैं सब के लिए ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। यदि हम ट्रेडिशनली कंपेयर करें, जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उनमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां आपकी 3 कंडीशंस होती थी। इनिशियलाइजेशन होता था, कंडीशन चेक होता था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पोर्शन होता था। यहाँ आपके इस लूप में जो है वो सिंपल एक ये है कि आप जिस वेक्टर को रेफरेंस देंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में है, ये उतनी टाइम्स ही लूप चलाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी है, इफ कंडीशन, कि वेरिएबल परसेंटेज परसेंटेज। जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे तो याद होगा आपको कि हमने यूज किया था आपके रिमाइंडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर की तरह ये काम करता है। डिवाइड बाय 2 नॉट इक्वल टू 0। यदि किसी भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर जो है वो नॉन जीरो है, मींस ऑड नंबर, सो मुझे इन ऑड नंबर्स को क्या करना है, काउंट। तो मैंने क्या किया, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो जितने मुझे ऑड नंबर्स मिलेंगे उतने की वैल्यू को मैं, उतने टाइम्स काउंटर को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, और एट लास्ट जब ये मेरा लूप क्लोज होगा तब मैं इस काउंटर को प्रिंट करूंगा कि ये जो मेरे पास इतनी सीरीज है इसमें मेरे पास कितने नंबर्स हैं जो ऑड हैं। इसी की जगह यदि मैं इसको इक्वल्स टू 0 कर देता तो ये मुझे इवन का काउंट दे देता। लेट्स सी आउटपुट। सो आउटपुट इज 11 items are odd. Let's find out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So 11 items are odd in this vector. So in this way for loop is used. Next is repeat loop. Similarly, it also performs the iterations of block of code, but it is a special type of loop where no condition is from exit. So इस रिपीट लूप के थ्रू हम बहुत आसानी से इनफाइनाइट लूप्स डिफाइन कर सकते हैं, मगर ये हमारे लिए प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जब इस लूप के अंदर ही हमें एग्जिट कंडीशन मेंशन करनी होती है। सो सिंटैक्स की यदि हम बात करें तो रिपीट लूप, देन कमांड्स, देन एग्जिट कंडीशन। आपको जो सेट ऑफ कोड्स है उसी के अंदर आपको एग्जिट कंडीशन देनी होगी। यदि हमने एग्जिट कंडीशन नहीं दी तो ये लूप चलता जाएगा और
सिर्फ चलता ही जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ पे एक सिंबल आ रहा होगा आपको, ये कंसोल का है। यहाँ पे हमने रीड लाइन मेथड यूज करी है, इसलिए ये जो है हम इसको कंसोल पे एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने एक टोटल लिया, टोटल को 0 से इनिशियलाइज किया, फिर मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया और उसको मैंने रीड लाइन के थ्रू, जब हमने मेथड्स पढ़ी थी इनपुट आउटपुट मेथड पे, तो हमने बात करी थी कि रीड लाइन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, और यदि मैं यहाँ पे कोई नंबर स्ट्रिंग में ले लूंगा तो वो एग्जीक्यूशंस नहीं करेगा, इसलिए मुझे उसको टाइप कास्ट करना पड़ा। इसलिए मैंने मेथड्स यूज करी है एज डॉट न्यूमेरिक। हमने नंबर्स वाले वीडियोस में ये चीज ऑलरेडी देखा था कि हमें कैसे किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में या डबल को नंबर में या नंबर को डबल में कन्वर्ट करना है। तो एज न्यूमेरिक को हमने यूज किया हुआ है, यानी जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रिंग को उसको ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, नंबर में। प्लीज एंटर एनी इंटीजर वैल्यू। यूजर से हमने एक इनपुट लिया है, सपोज यूजर ने 10 इनपुट किया और हमने इसमें लगाया है रिपीट लूप। और मैंने क्या किया कि टोटल जो मैंने किया था उसमें टोटल प्लस नंबर, जो भी नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो 10 ऐड किया है बट वो रिपीट होगा, 1 बाई 1 रिपीट होगा, उसको ऐड ऑन करेंगे और नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1 करते जाएंगे। यानी टोटल मेरा 0 है, नंबर इनिशियल वैल्यू है 10, यानी मैं 10 से स्टार्ट करूंगा और ये 10 को मैं नंबर को एग्जीक्यूट करता जाऊंगा और उसका जो है सम वो डिस्प्ले करता जाऊंगा टोटल वैल्यू को। और साथ ही मैंने एग्जिस्ट कंडीशन क्या रखी है कि यदि टोटल की वैल्यू 100 से ज्यादा हो जाए तो आप इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। यानी मेरी एग्जिट कंडीशन कब होगी, जब मेरी टोटल वैल्यू जो है वो 100 प्लस हो जाएगी। लेट्स सी द रिजल्ट्स। सबसे पहले टोटल जब 0 था और नंबर की वैल्यू 10 थी तो मेरा सम आया 10। फिर मेरी वैल्यू हो गई 11 क्योंकि नंबर प्लस 1, तो वैल्यू हो गई मेरी 11, तो 10 प्लस 11 21, देन 21 प्लस 12 33। सिमिलरली हम कब तक गए, ओ माय गॉड 108 तक, जबकि मेरी कंडीशन तो थी टोटल ग्रेटर देन 100। ये कैसे आया, जब ये कंडीशन चेक हुई थी तब मेरे टोटल की वैल्यू थी 91, एंड 91 के बाद जब ये फर्दर एग्जीक्यूट हुआ, यानी 11 12 13 14 15 16 मींस 17, टोटल 91 प्लस 17 जब इसमें ऐड हुआ तब जाके सम की वैल्यू जो है 108 पहुंची। उसके पहले जो टोटल की वैल्यू थी वो थी आपकी 91। तो यहाँ पे 91 के लिए कंडीशन ट्रू थी, बट जैसे ही हमने इसको फर्दर एग्जीक्यूट किया अब जाके हमारे पास टोटल हुआ 108, और यहाँ पे ये हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है और हमने मतलब कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है और हमने जो स्टेटमेंट था इसका ब्रेक उसको यूज कर लिया है और हम इस फॉर लूप से बाहर आ गए हैं। इसलिए यहाँ पे सम जो है वो लास्ट आया हमारा 108 जो कि टोटल की वैल्यू थी। सो इस तरीके से हमारा रिपीट लूप जो है वो वर्कआउट करता है। नेक्स्ट इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के लिए हमें जो है पहले कंडीशंस मेंशन करनी होती है। सो सिंटेक्स के थ्रू देखते हैं। व्हाइल कीवर्ड के साथ सबसे पहले हमें उसकी टेस्टिंग कंडीशंस या टेस्ट एक्सप्रेशंस जो है वो देना होता है ताकि हम इसको प्रॉपरली टर्मिनेट कर पाए। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि व्हाट इज द लास्ट टर्मिनेटिंग कंडीशंस। एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया है n वेक्टर और इसमें मैंने रैंडम वैल्यूज डाली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सम वेरिएबल लिया है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है और मैंने व्हाइल की कंडीशन लगाई है कि जब तक n नॉट इक्वल टू 0 है तब तक हम इसको क्या करते जाएंगे, एग्जीक्यूट करते जाएंगे। सम में मैंने सम प्लस एन मॉड्यूल 10, यानी ये हमेशा जो भी n की वैल्यू होगी उसको 10 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ देता जाएगा। यानी सम में हम हमेशा रिमाइंडर ऐड करते जाएंगे। और उसके बाद हमने जो नई वैल्यू है n की उसको डिफाइन किया हुआ है n इक्वल्स टू एज इंटीजर n बाय 10। एज इंटीजर हमने इसलिए रखा है क्योंकि इस नंबर को यदि मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मुझे हमेशा
डबल नंबर या फ्रैक्शन नंबर ही मिलेगा, इसलिए मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। और एट लास्ट इस लूप को एंड होने के बाद मैंने सम ऑफ द डिजिट्स नंबर को डिस्प्ले कराया कि भाई इन सारी जो डिजिट्स हमने एंटर करी थी इनका सम क्या है। सो लेट्स टेक ए आउटपुट। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 45। यदि मैं 1 से 9 तक के इनकी इन नंबरों को ऐड करता हूं तो 45 आएगा। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, क्या n नॉट इक्वल टू 0 है? यस, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो हम गए, सम की वैल्यू 0 थी, हमने इसको डिवाइड बाय 10 किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया। जो हमारा रिमाइंडर था वो था 9। हमने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद हमने फिर इसको कंपेयर कराया कि इसकी नई n की वैल्यू क्या होगी। तो नई n की वैल्यू में से हमारा 9 माइनस हो गया। अब जो नई वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, इसके साथ हमने प्रोसेस किया, क्या ये हमारी नॉन जीरो है? बिल्कुल नॉन जीरो है। हमने फिर डिवाइड किया, हमें मिला 8। हमने 9 प्लस 8 को ऐड कर दिया और ये हम कब तक करते गए, जब तक कि n की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी नहीं हो गई। क्योंकि एक टाइम के बाद जब ये 1 बचेगा और 1 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 0.1 आंसर आना चाहिए, बट चूंकि मैंने इंटीजर लिया हुआ है इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0। तो अब यहाँ पे आपका जो लूप है वो कंडीशन फॉल्स कर रहा है, इसलिए हम इसको एग्जिट कर देंगे और हमारा जो रिजल्ट आया है 1 से लेके 9 तक के डिजिट का एडिशन वो है 45। सो हमने 3 लूप देखे, हमने फॉर देखा, हमने रिपीट देखा और हमने व्हाइल देखा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है हमारा फंक्शंस। So basically function is a block of statement or set of statement which are organized together to perform a specific task. Our language can provide a series of inbuilt function along with a facility to create your own function known as user defined functions. So functions में सिंपली ये डिफरेंस है कि जो कोड है वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार आप फंक्शंस को कॉल करेंगे। सो लैंग्वेज और में फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए जो है वो फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता है। एक बेसिक सिंटेक्स देखें कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम होगा, उसके बाद फंक्शन कीवर्ड का हम यूज करेंगे या फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम सप्लाई करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो देना, चाहे दे दें, नहीं देना चाहे तो नो इश्यू। फॉलोड बाय द फंक्शन बॉडीज एंड टर्मिनेशन। सो फंक्शन हैज अ 4 कंपोनेंट्स बेसिकली। तो यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें तो फंक्शन नेम जो है वो कंपोनेंट होना चाहिए। फंक्शन का कोई ना कोई नेम होगा सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई। फंक्शंस जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट्स आर में स्टोर किए जाते हैं। देन आर्ग्यूमेंट्स, यानी फंक्शंस कितने तरीके के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ऑप्शनल होते हैं। आप चाहे तो दें, आप चाहे तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या विदाउट आपके आर्ग्यूमेंट्स भी ये फंक्शंस को बना सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देन फंक्शन बॉडी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंक्शन बॉडी? इज the set of statement that are defined under the functions is called function body. हम क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो हमें बताएगी function body। और last is return value, means what is the ultimate output of this function और function body should be evaluated। ये function क्या टास्क कर रहा है, उस टास्क का जो फाइनल आउटपुट है उसे हम कहते हैं return value। what is the results delivered by the function। सो फंक्शंस टाइप की यदि हम बात करें तो अदर लैंग्वेजेस की तरह भी हमारे आर लैंग्वेज में 2 कैटेगरीज होती हैं फंक्शन की, जिसमें जो पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं बुल्ट इन फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन। इसमें वो सारे फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क ने डिफाइन किए हुए हैं, आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। आप इन फंक्शन को जस्ट टाइप करें, यूज करें और ये आपके एग्जीक्यूट्स हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है
सीक्वेंस, मीन, मैक्स, सम, एक्सेट्रा। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं। अलग अलग पैकेजेस में इनबिल्ट बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं इनबिल्ट फंक्शन। दूसरे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसमें यूजर्स according to their requirement it can create their own functions to perform their own task। तो ये जो फंक्शंस हैं, यदि हम एक बार बना लेते हैं तो हम इनको बिल्ट इन फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शंस की तरह फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा मेजर जो टास्क है वो है यूजर डिफाइन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का, कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसको हमने रखा हुआ है विदाउट आर्गुमेंट कैटेगरी में, यानी हम इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास ऑन नहीं कर रहे हैं। द फंक्शन नेम इज न्यू फंक्शन, देन function keyword is used, function is used for the creating a function, and within the body of this function we use a for loop from a range 1 to 5। इट मीन्स ये एक वेक्टर सीक्वेंस वेक्टर हो गया जो 1 से 5 तक का वेक्टर है। आई को 1 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट करना है, और हम यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑफ आई पावर 2, मीन्स आई की स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। और एट लास्ट हमने इस फंक्शन को किया हुआ है कॉल, दिस इज फंक्शन कॉलिंग। जो न्यू फंक्शन मैंने बनाया था उस न्यू फंक्शन को मैंने सिमिलरली क्या किया है, कॉल किया है। पहले मैंने उसको डिफाइन किया है और फिर बिल्ट इन फंक्शन के जैसे मैंने इसको यूज कर लिया है। सो लेट्स सी दी आउटपुट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, सो ऑन 16 एंड 25। तो ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल था जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को हमने कॉल भी किया। Then function calling with an argument, how I can create a function with an argument and how I can use it। So just take a program, create a function to print a square of numbers in sequence। हम स्क्वायर्स को ही कर रहे हैं, यानी जो हमारा फंक्शन जो अभी इससे पहले बनाया था हम उसी को बना रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि अब हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट का यूज कर रहे हैं। सो वी हैव यूज इट आर्गुमेंट ए। कोड वही है, सिंपली हमने बस चेंजेस ये कर दिए हैं कि यहाँ पे हमने b ले लिया है और आई स्क्वायर की वैल्यूज को असाइन कर दी है, b को प्रिंट कर दिया है। और जब हम फंक्शन कॉलिंग की बात करें तो हमने इसको जब कॉल किया है तो हमने इसमें वैल्यू पास ऑन कर दी है, यानी ये अब कब तक चलेगा। यहाँ पे हमने एक का रोल डिफाइन किया है कि सीक्वेंस जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जो फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वहां तक उसको एग्जीक्यूट करना है। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने इसको 1 to 5 तक किया है, इस प्रोग्राम में हम इसको 10 वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली 1 to 10 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करेगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन रिजल्ट्स। सी 1 से लेके 10 तक, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10 आई हैव स्क्वायर वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। we can pass any number and this program will execute accordingly। ये उस गिवन नंबर तक आपके स्क्वायर्स को प्रिंट कर देगा। सो इंपॉर्टेंट इज calling with an argument, we use here a argument and we pass this argument by calling the function। So move to the another example। Now we are discussing function calling with argument values, function calling with arguments values। So here we are creating a function with arguments, new function, then function to create a function, and we have passed 1 2 3 three parameters in it, 3 arguments in it। And what we are doing with this in body, we have to create a results and evaluating as x multiplied by y added by z, and we have to return a value that is results। हम क्या कर रहे हैं, इस results को display
कर रहे हैं। अब हाउ आई कैन कॉल दिस वैल्यू, यहाँ पे हमने फंक्शन क्लोज किया एंड मूव टू दी कॉलिंग. सो आई कैन पास द आर्ग्यूमेंट जस्ट लाइक न्यू फंक्शन 11, 13 and 9. I can directly provide the value and it will directly taken by the x, y and z respectively. Another way where I can utilize that x equals to 2, y equals to 5 and z equals to 3. This is also calling the function by name of argument. हम argument के name के साथ भी इसको call out कर सकते हैं. So let's take a result. What is the output of this program? So first output is 152, means 11 into 13 plus 9. Then next one is 2 into 5 plus 3. So this is the results. Both the functions, both the calling patterns are executed accordingly. So we can function calling with the argument values. डायरेक्ट वैल्यूज भी हम दे सकते हैं और पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स के नेम के बेसिस पे भी असाइन करके हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट, फंक्शन कॉलिंग विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स. Function with default arguments. If we are passing the arguments, well and good, but if we do not pass the argument, they take default value. So just take a look with the program. एक न्यू फंक्शन बनाया. फंक्शंस के थ्रू हमने इसमें x की डिफॉल्ट वैल्यू ली है 11 और y की डिफॉल्ट वैल्यू ली है हमने 24 और रिजल्ट्स वेरिएबल में हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट कराया है और रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराया है. अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे दोनों तरीके से. तो सबसे पहले हमने इसको विदाउट गिविंग आर्गुमेंट एग्जीक्यूट करवाया है, न्यू फंक्शन, और उसके बाद हमने इसमें पैरामीटर पास करने के बाद, आर्गुमेंट पास करने के बाद हमने इसको कॉल किया है. तो ये दो रिजल्ट्स देने चाहिए, पहला डिफॉल्ट के साथ और दूसरा आपकी पैरामीटर्स के साथ. तो डिफॉल्ट में है इसकी जो वैल्यू है वो 264 है, मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 एंड 24. और सेकंड जो वैल्यू है दैट इज 4 into 6. अब जब हमने इस फंक्शन को यूज किया तो x की वैल्यू 11 नहीं थी, x की वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू हो गई 6. ये सिर्फ तभी यूज होंगे 11 और 24 जब हम विदाउट आर्गुमेंट यूज करेंगे. सो 11 and 24 is basically default argument values. So we have discussed about the functions, user defined functions, and how we can create and call different user defined functions. Thank you for the watching this video.